Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My dear student, on the last occasion we was discussing about the cohort study. Before that we discussed much about the case control study and cross-sectional study. Then the next topic is the experimental trial. But we will start this, I will deliver this lecture after biostatics and sampling topic. Today, I am starting with the topic of the screening of the disease. This is your new topic for discussion at here. The topic name of topic is a screening of the disease. Are you ready, my dear students? Hello? Sir, Hello? Are you ready? yes, So sir. at here there is a screening. The definition, now we are discussing about the definition. So what is the definition of the screening? This is a search for unrecognized disease or defect by means of rapidly applied tests, examination or other procedure in apparently healthy individuals. Means search for unrecognized disease. Means person have not recognized their disease or any defect by rapidly applied test or the procedure of the examination and the other procedures. In the iceberg scenario of the disease, means iceberg scenario of the disease means the physicians, the tip of the iceberg indicates only the cases which are visible for the physicians. I mean to say they are with the sign and symptoms. The submerged portion of the iceberg means major amount of the cases are hidden in the community. So what can we do? That the much amount of disease like COVID, much amount of disease is not visible at here. But we are presuming that the COVID is to be present and with huge magnitude, huge amount in the community. Only the few patients are at the tips which are visible by the physicians. So for that procedure we are adopting a procedure is that which is called as screening to to recognize the unrecognized disease from the community. Have you got my point? आइसबर्ग सिनेरियो ऑफ द डिजीज बेटा ऐसे है कि आइसबर्ग का मतलब सवाल ये है कि टिप ओनली विजिबल but the major amount of the ice is hidden in the sea. It means the tip is visible means there are these two cases which are with the sign and symptoms, but the major amount of the cases they are hidden in the community. उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? उसके लिए एक प्रोसीजर है किसको जो रिकॉग्नाइज करे केसेस को जो हिडन है कम्युनिटी में, उसको हम कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द स्क्रीनिंग. फॉर एग्जांपल बेटा हम जाते हैं यहाँ से कोई हॉस्पिटल जाते हैं किसी को जो ब्लड डोनेट करने के लिए. हम यहाँ से बिल्कुल हेल्दी हैं, यहाँ से जाते हैं, उधर हमें पता पड़ता है कि भाई आपको तो हेपेटाइटिस बी है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग. दिस इज द definition of the screening. Means search for unrecognized disease or defect by means of rapidly applied test, examination or other procedure in apparently healthy individuals. Means कोई बंदा जाता है ब्लड देने के लिए, he is healthy individual, apparently healthy, but जब उनकी स्क्रीनिंग हुई ब्लड की तो उसको पता पड़ा कि भाई मुझे तो हेपेटाइटिस बी है. So this is called as screening. Have you got my concept or not? Means the search, this is a search for unrecognized disease. उसको भी पता नहीं है बंदे को भी. ठीक है, search for unrecognized in apparently healthy individuals. This is the definition of the screening. So there are some terms. So what is difference between the screening and periodic health examination? And here the slide is visible before you. This is a screening and this is a periodic examinations.
Screening capable of wide application, capable of limited application, and periodic examinations. There कोई मतलब कोई स्कूल की हम एग्जामिनेशन करेंगे या कोई फैक्ट्री की करेंगे, माना क्या लिमिटेड है, लेकिन ये वाइड है, किसी कम्युनिटी की बड़ी वाइड है, जो भी होगा बंदा उसको हम स्क्रीनिंग करेंगे. रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, सस्ती है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, requires little physician time, requires physician time. इसमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, वो होती है. इसमें तो हम टेस्ट करेंगे भाई डायरेक्टली, हम हेपेटाइटिस बी सी की या एक्सरे टेस्ट करेंगे या कोई और एग्जामिनेशन करेंगे ब्लड प्रेशर का, तो जल्दी में हमें पता पड़ जाएगा. So this is a little bit different. These are the periodic examination, difference between the screening and the periodic examinations. Screening क्या है बेटा? Search of unrecognized diseases, apparently healthy population. वो भी हेल्दी पॉपुलेशन एग्जामिनेशन हम जैसे लेबर डिपार्टमेंट में करते हैं, कोई फैक्ट्री में करते हैं, वो तो एक लिमिटेड है, ये वाइडली यूज है स्क्रीनिंग. ये इनएक्सपेंसिव है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, इसमें फिजिशियन का टाइम है, इसमें फिजिशियन का टाइम नहीं है. एक दिस इज द डिफरेंस हियर between the screening and the periodic examination. Are you getting my point, my sons and daughter? Hello? Hello? Hello, beta, you are with me? Yes, Sir, sir. please, can you repeat it again? Difference between the screening and yes. the periodic examination. Yes, very good, my daughter. Very good, my daughter. बेटा ये पीरियोडिक जो एग्जामिनेशन होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, एक लेबर के हवाले से पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते हैं. आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर एक एग्जामिनेशन होता है कि ascertain the disease process in the among the persons. ठीक है ना, जो भी उनका जो मतलब है, बंदे वगैरह काम करते हैं तो उसका पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, एक्सरे चेस्ट देखते हैं, जैसे माइन वर्कर्स हैं या कोई भी है. ठीक है ना, तो असर्टेन द डिजीज, रिकॉग्नाइज करें डिजीज को, उनको पता नहीं है. तो दिस इज द पीरियोडिक एग्जामिनेशन. उसका साल के बाद वेट करना पड़ता है या 6 महीने के बाद वेट करना पड़ता है. स्क्रीनिंग तो डायरेक्टली है ना बेटा, कम्युनिटी में वाइड एप्लीकेशन है, सस्ती है. इसमें मतलब डायरेक्ट कोई मतलब ब्लड प्रेशर की टेस्ट ले ली हमने, सीरम कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट ले ली, ब्लड शुगर की टेस्ट ले ली, तो डायरेक्टली होगा. ठीक है ना, ये वाइड एप्लीकेशन. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन द स्क्रीनिंग एंड द पीरियोडिक एग्जामिनेशन, आई मीन टू से. हैव यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? हेलो? Yes, sir, I got you. थैंक यू. Thank you. स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. नाउ देयर इज अ, पहले जो क्या थी बेटे, स्क्रीनिंग एंड द पीरियोडिक एग्जामिनेशन की डिफरेंस था. मींस व्हाट इज ये पीरियोडिक एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग का डिफरेंस था. नाउ बेटा, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या फर्क है? स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. Those who are found to have a positive test result are referred to the physician for further diagnostic workup and the treatment. Means screening is maybe defined as this is initial examination. Initial examination screening. इसको हम क्या करेंगे बेटा? तो इसको हम फिजिशियन के पास रेफर करेंगे, फिजिशियन उसको फर्दर डायग्नोस्ट उसके ऊपर वर्कअप करेगा. अभी हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या फर्क है. देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट डन ऑन एपरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन. जो भी जब भी हम डायग्नोस करते हैं तो मींस वो पेशेंट होता है. दिस इज द हेल्दी पॉपुलेशन. दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड, they are not recognizing their disease, while the diagnostic test means there's a recognized. भाई मुझे कोई तकलीफ है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैं जाता हूँ, मेरी ऐसे मतलब गर्दन वगैरह में दर्द पड़ता है, साइन और सिम्टम्स में होगा. एक तो डिफरेंस ये है, ये अपेरेंटली इसको पता नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर है ही नहीं, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, इसको पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है. मीन्स डन ऑन दोज विद द इंडिकेशन ऑफ सिक, मीन्स दे आर सिक. Applied to the groups, applied to the individual patient, मतलब जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास. लेस एक्यूरेट है स्क्रीनिंग, ये मोर एक्यूरेट है डायग्नोस्टिक टेस्ट के, रिपीटेबल है. ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है,
ये मोर एक्सपेंसिव है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनिशिएशन कम फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर। भाई इसमें जो है ना स्टार्ट कहाँ से होता है, जो इन्वेस्टिगेटर जो स्क्रीनिंग करता है उससे होता है, केयर प्रोवाइडर से। लेकिन ये जो पेशेंट खुद जाता है, भाई मुझे जो है ना कार्डियो में जाना है, मुझे तकलीफ है, ये है। So this is, I mean to say, difference between the screening test and the diagnostic test. Done and apparently screening done as already I instructed you. The screening is done in apparently healthy population. This is done on the sick persons, means patients. Applied to the individuals, diagnostic test, this is applied to the groups. Diagnostic test is more accurate. This is a screening is a less accurate. This is a diagnostic test is a more expensive, and this screening test is a less expensive. The start comes from the patients in diagnostic test, while the start comes from the investigators or the care providers in screening test. स्टार्ट क्यों होता है भाई, क्योंकि स्क्रीनिंग में क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये रिकॉग्नाइज्ड है डायग्नोस्टिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द स्क्रीनिंग, एज देयर दैट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट द little bit difference between the periodic examination as well as in the screening. Now this is the concept of the lead time. ये देखें थोड़ा, एक टाइम लेग है, दूसरा लीड टाइम है। तो बेटा कोई ये कंसेप्ट ये है कि जब कोई डिजीज हो जाती है, ये पॉसिबल उसका टाइम क्या होता है उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर हो गया या किसी को डायबिटीज हो गई, स्टार्ट हुई डिजीज, वो द साइन एंड सिम्टम्स, अब तो जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसकी मतलब क्लियर हो जाएगा तो उसको पता हम पड़ेगा कि भाई इसकी जो ब्लड शुगर है 250 से ऊपर है, या इसका ब्लड प्रेशर जो है 200/100 है, ठीक है ना। तो इसको मतलब टाइम लगता है, ठीक है ना, टाइम लगता है। मीन्स पॉसिबल कोई भी डिजीज प्रोसेस हो उसके पॉसिबल आउटकम कब होता है, इस टाइम की कैलकुलेशन करनी है। आई मीन टू से ये एक डिजीज हो गई बेटा, ये एक डिजीज हो गई फॉर एग्जांपल, इसका मतलब टाइम कितना लगता है, मतलब डायग्नोसिस में आस्ता आस्ता क्लियर साइन एंड सिम्टम हो जाएगा। पॉसिबल टाइम होगा भाई इसको 2 माह लगे, 3 माह लगे, ठीक है ना, या 6 माह लगेगा, ठीक है। तो इसको एक टाइम की डिस्कशन है। नाउ एट हियर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द लीड टाइम, कि पॉसिबल टाइम क्या है। इट इज द टाइम बिटवीन द डिजीज ऑनसेट, टाइम lag. It is the time between the disease onset and usual time of the diagnosis. Disease start हुई और कितना टाइम लगता है यूअल टाइम ऑफ द डायग्नोसिस। सर ये 6 माह पहले हमें डिजीज हुई थी, इसके बाद ये जो है ना इसके साइन और सिम्टम्स अभी क्लियर हुए हैं, अभी मुझे विजिबल हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द टाइम लैग। व्हाइल इन द लीड टाइम, जब स्क्रीनिंग है, पता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मतलब है, स्टार्टिंग माइलस्टोन डिजीज की हो गई है, पैथोजेनिक फेज शुरू हो गया है, मुझे पता नहीं है, अनरिकॉग्नाइज है। मैं जो जहाँ पर जाता हूँ हॉस्पिटल में जाता हूँ किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जाके मैं ब्लड डोनेट करूंगा, लेकिन उसको पता पड़ा कि आपको तो हेपेटाइटिस बी है। मींस नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मतलब उसकी शुरू हो गई थी, लेकिन फुल सिम्टम्स मैच्योर नहीं हुए थे। दिस इज कॉल्ड द लीड टाइम। सो स्क्रीनिंग में हमें क्या मिलता है, एक लीड टाइम मिलता है कि बंदे को पता ही नहीं है, हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन के लिए जाता है और वो स्क्रीनिंग की टेस्ट मतलब स्क्रीनिंग की वजह से उसको हेपेटाइटिस बी होती है, लेकिन तो उसको क्या होगा, अर्ली डायग्नोस, अभी क्या होगा, लीड टाइम हमें मिला कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को हम डिस्टर्ब उधर ही करेंगे स्टार्टिंग माइलस्टोन पर, कि उसके साइन और सिम्टम्स उधर ही रिलीव करेंगे विदाउट, मतलब साइन और सिम्टम शुरू नहीं हुए हैं लेकिन उधर ही उसको इंटरप्ट करेंगे उसके ट्रांसमिशन को। भाई आपको ये चीजें नहीं लेनी है, ये चीजें नहीं लेनी है, ये मतलब ऐसे ही उसको हम करेंगे। दिस इज अ लीड टाइम इन द स्क्रीनिंग। टाइम लेग क्या है,
a possible time of the disease start up to the possible time of the diagnosis, पैथोजेनिक फेज का, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का। लेकिन हमें स्क्रीनिंग में क्या बोलता है, एक लीड टाइम मिलता है, वी गेन अ लीड टाइम बिकॉज ऑफ डेट वी आर अर्लियर एट देयर, we are earlier at there, we are unrecognized by ourselves that we are suffering from some disease. So though with the I am unrecognized from that disease, it means no, this is the time, lead time for me to disturb the natural history of the disease. उसको mature होने से पहले पहले मैं उसको disturb करूं कि वापस Have you got my point? Lead time and time lag concept of the lag, time lag and lead time. Have you got my point? Hello? Hello? Yes, sir. Hello, beta? Right? What is difference, beta? Time lag and lead time, my daughter? What is difference? Tell In me. time lag, there is a Very good. it's a time between the onset of disease and the diagnosis of the disease. It can be variable, like, and the disease can proceed to advanced stage. But the lead Very time is an advantage gained by the screening. So by the Yes. screening process, we will detect the disease earlier than the advanced before the disease becomes on the advanced stage. Means advanced, It's before a, the advanced. yes, sir. Before the stage. disease reaches the advanced It stage, means the screening process will help us to diagnose, and we will interrupt the further processing of the disease. means we are disturbing the process of the disease. This is Yes, the sir. We are advantage. disturbing This the is the process of disease by advantage gained by the screening. screening क्योंकि process. बेटा Yes, sir. ठीक है ना बेटा, किसी को पता ही नहीं है, वो तो हेल्थी बंदा है, जाता है हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उसको हेपेटाइटिस बी की डायग्नोसिस हो जाती है, ठीक है ना, तो फर्दर केयर करेगा ना, फर्दर केयर करेगा, जो भी अभी उसके साइन और सिम्टम्स शुरू नहीं हुए हैं तो नेचुरल हिस्ट्री उसकी डिजीज की डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. Now, basic purpose of the screening, basic aims and objective of the screening. इसकी aim क्या है बेटा, हमने कहा, मैंने पहले आपको बताया iceberg scenario of the disease. Iceberg scenario of the disease क्या है बेटा, tip is visible, means the cases which are both the sign and symptoms is visible. By the submerged portion, major amount of disease is hidden in the community. तो उसके लिए हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेजर अमाउंट ऑफ डिजीज इज हिडन, कोविड की जो मेजर अमाउंट ऑफ दी कोरोना की डिजीज है हिडन है इन द कम्युनिटी में, उसको हम बाय द स्क्रीनिंग से हम टेस्ट के जरिए हम उसको विजिबल करते हैं, ठीक है ना। The aims and objective of the screening, the basic purpose of the screening is to sort out from large number of apparently healthy persons those likely to have the disease or at increased risk of the disease under study. तो हमारी एम क्या है बेटा, क्या है स्क्रीनिंग, टू सॉर्ट आउट लार्ज नंबर ऑफ apparently हेल्दी जो पर्सन्स हैं, जो खुद को हेल्दी समझते हैं, तो उसको हम मतलब डिजीज प्रोसेस उसके अंदर ढूंढें, ठीक है, which are at the risk. ये तो एक एम हमारी हो गई, ठीक है, ये एम है। जैसे कहते हैं बेटा अब वो 40 जो हो तो उसकी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाएं, ठीक है ना, इसकी मतलब ये चांसेस हैं। तो ऐसे ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं स्क्रीनिंग, ये है कि बेसिक पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज टू सॉर्ट आउट फ्रॉम द लार्ज नंबर of the apparently healthy persons those likely to have the disease or at increased risk of the disease under study. Means जो risk पर होता है उसको मतलब हम sort out करें. So there are some terms here for the discussion. Explanation of the terms here. There is one is a screening, other is a case finding, and number third is a diagnostic test. These are the explanation of the terms. Screening is a testing for the disease in the population individuals who are not seeking the health care. Means unrecognized है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या है, डिजीज प्रोसेस में हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इज द टेस्टिंग फॉर द डिजीज इन अ पॉपुलेशन
are the individuals who are not seeking the health care. एक तो स्क्रीनिंग हो गई. Now difference between the case finding is a use of the clinical and laboratory tests to detect the disease in individuals seeking a health care for other reasons. भाई बंदा जाता है किसी भी चीज के हवाले से हॉस्पिटल में, कोई मतलब जाता है बंदा, भाई चेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है ना, मैं तो यार चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जाता हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है ना, तो उसकी मतलब जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज आ गई कोविड-19 की, कोरोना एक पॉजिटिव एंटीबायोटिक हो गई, तो ये क्या हुआ बेटा, केस फाइंडिंग. ये क्या, एक केस फाइंडिंग हो गई. मीन्स बंदा कोई दूसरे काज पर जाता है लेकिन उसको मतलब डिजीज जो है ना केस फाइंडिंग हो गया कोई और, ठीक है ना. उसके बाद एक केस फाइंडिंग, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्क्रीनिंग एंड द केस फाइंडिंग इज द यूज ऑफ क्लिनिकल or the laboratory test to detect the disease in individual seeking a health care for other reasons. भाई वो जाता है बंदा किसके लिए, ब्लड शुगर के लिए जाता है, यार मुझे शुगर हो गई है मैं टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है. जब उसकी टेस्ट मतलब करवाने जाता है तो उसका हमने एक्सरे लिया, एक्सरे में मतलब कोई उसकी फाइंडिंग आ गई नमूना वगैरह की, दिस इज अ केस फाइंडिंग इट हियर सर, मतलब ये है. या उसकी मतलब कोविड की टेस्ट आ गई, दिस इज कॉल्ड केस फाइंडिंग. नाउ नंबर थर्ड इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट used to confirm or refute the existence of disease in patient with the sign and symptoms. एक तो clinical sign and symptoms होगा उसमें, और हम confirm करते हैं कि ये disease इसको है या नहीं है. This is called the diagnostic test. So there are these some terms which are the terms screening, they are unrecognized from the individuals from the disease, case finding for the clinical and laboratory test, detecting disease of the individuals seeking a health care for the other reasons. And number third is a diagnostic test or confirm or refute the existence of the disease in the patients with the sign and symptoms. This is called a diagnostic test. Uses of the screening, early case detection, prescriptive screening, early case detection हो जाएगा भाई यूजेस में, ठीक है ना, तो बर्डन ऑफ डिजीज कम हो जाएगा, बर्डन ऑफ डिजीज कम हो जाएगा तो कम्युनिटी सेट हो जाएगी, ठीक है ना, अर्ली केस डिटेक्शन होगा. उसके बाद बर्डन ऑफ डिजीज कम हो जाएगा तो कंट्रोल ऑफ डिजीज होगा, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजीज होगा. रिसर्च पर्पस होगा कि भाई इसकी नेचुरल हिस्ट्री डिजीज की क्या है, कैसे आती है, पेपर्स वगैरह लिखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, साइन एंड सिम्पटम्स है, प्रेजेंटेशन कोविड की कैसे है, दिस इज अ रिसर्च पर्पस. उसकी वैक्सीन बनी है अभी तक क्यों नहीं बनी है, उसकी जो मतलब उस हवाले से उसकी इम्यून पावर पर क्या रोल है, दिस इज अ रिसर्च पर्पस. एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हम उस पर पढ़ सकते हैं एक एजुकेशनल हवाले से. तो यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, एक मवाद मिल जाता है हमें, नई नई रिसर्च के हवाले से नया नया टॉपिक्स मिल जाते हैं, वेरियस मतलब एस्पेक्ट्स उसके डिस्कशन के एजुकेशन हवाले से मिलते हैं. सो यूजेस ऑफ द स्क्रीनिंग मींस अर्ली केस डिटेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, control of the disease, this is called the prospective screening, and the research purpose and the educational opportunities, ठीक है ना. These are the uses of the screening. Now early case detection or the prescriptive screening defined as a presumptive identification of unrecognized disease which does not arise from the patient's request. This is a diabetes mellitus and cervical cancers, etc. This is the early case detections. Means presumption of the identification of the unrecognized disease. Then the control of disease, people are screened for the benefit of the others, e.g. screening of immigrants from the infectious disease to protect the home population. कोई बाहर से आ जाता है, ठीक है ना, तो उसकी हम ट्रांसमिशन डिजीज की कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ डिजीज हो गई, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग जैसे उसकी एंट्री नहीं हो. Have you got my point? Then
Research purpose screening may aid to obtain a more basic knowledge about the natural history of the disease, means starting milestone of the disease. Then educational opportunities provide opportunity for public awareness, for educating the health professionals. भाई क्या है कि एक तो public awareness हो जाएगी, public ठीक है. Educational opportunities provide opportunities for the public awareness and for the education of the health professionals. Types of the screening: mass screening, widely used term. High risk screening by 40 years से जो ऊपर बंदे होंगे उसको, जिसको हम selective screening कहते हैं. भाई ब्लड प्रेशर और शुगर 40 years से जो इसकी जो एज ज्यादा है. और मल्टीपल स्क्रीनिंग, भाई हम एक्सरे भी लेंगे, उसमें ब्लड शुगर भी देखेंगे, यूरिन डीआर भी करेंगे. मल्टीपल phases of the screening. There are 3 types of the screening. One is a mass screening, other is a high risk or selective screening under 5 years of children या 1 years of children या lacting mothers means selecting हो गई. ठीक है. Mass means whole the community. High risk means सिलेक्शन करते हैं, अंडर 5 years का बच्चा हो या 40 years का हो या लैक्टिंग मदर हो. और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग क्या है, तो उसमें हम जो है ना 3-4 टेस्ट वगैरह लेते हैं. ठीक है. Mass screening simply means the screening of the whole population or subgroup of population, e.g. all adults. High risk or selective screening: high risk groups are defined on the basis of the epidemiological research, just like cancer, cervix, cancer of cervix more often in lower socioeconomical groups. Certain diseases tend to be aggregate in the families, e.g. diabetes mellitus, breast cancers. जैसे families में हम select करते हैं, भाई इनको history है, इनको मतलब इनहेरिटेंस की, डायबिटीज मेलाइटस की, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसको हम हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहते हैं. मींस सिलेक्शन होती है पॉपुलेशन के, उसमें सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर रिस्क फैक्टर्स लाइक इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल इज एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो ठीक है ना, मतलब सीरम कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड किससे है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से होती है. ऐसे एपिडेमियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द स्क्रीनिंग. या तो हम कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग का मतलब एक्सप्लेन करता है, जैसे किसी बंदे का सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मींस ये शो करेगा इसके हवाले से कि इसको रिस्क पर है. मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग defined as the application of 2 or more screening tests in combinations to be a large number of the people at one time, e.g. hematological and chemical test and on blood and urine specimens. मीन्स 3-4 टेस्ट वगैरह हम जो है ना एक ही मतलब स्क्रीनिंग के प्रोसेस में हम लेते हैं. तो बेटा दिस इज कॉल्ड क्या है, एक तो टाइप्स ऑफ द स्क्रीनिंग: मास स्क्रीनिंग, हाई रिस्क और सेलेक्टेड स्क्रीनिंग. मास मींस होल ऑफ द पॉपुलेशन, ऑल द एडल्ट्स, ऑल द वुमेन्स. ठीक है, मास. हाई रिस्क जो रिस्क पर है, अबो 40 रिस्क पर है, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन जो रिस्क पर है. मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, इसमें 3-4 टेस्ट वगैरह मिला के हम मतलब एक ही टाइम पर लेते हैं. भाई ब्लड शुगर भी लेंगे, यूरिन सैंपल भी लेंगे उसका, उसके बाद उसका स्फिंगोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर से उसका ब्लड प्रेशर भी हम चेक मतलब करेंगे, या हम एक पोर्टेबल एक्सरे उसका चेस्ट का एक्सरे भी लेंगे. दिस इज कॉल्ड ए मल्टीपल स्क्रीनिंग. गॉट माय पॉइंट्स? हेलो हेलो. Yes, sir. Just search only I think my where are the other students, my sons and daughters? और कहाँ पर है बेटा? They are also listening or not? Hello? Yes, sir. Listening, sir. Thank you. बेटा, Thank you. definition unrecognized disease है apparently healthy population में. अभी
स्क्रीनिंग और पीरियडिक एग्जामिनेशन। पीरियडिक एग्जामिनेशन लिमिटेड है, 6 माह के बाद या 1 साल के बाद जो है ना पीरियडिक एग्जामिनेशन लेते हैं। स्क्रीनिंग जब आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रिक्वायर लिटिल फिजिशियन टाइम है। इसमें जो है ना पीरियडिक एग्जामिनेशन में फिजिशियन आएगा, फिर देखेगा, फिर बैठेगा, इसमें रिक्वायर टाइम है, ठीक है ना। वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव है। दिस इज एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी अ डायग्नोस्टिक। हम इसको स्क्रीनिंग टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कर सकेंगे। दिस इज द इनिशियल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम रेफर करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए, फॉर फर्दर वर्कअप के लिए, कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। भाई स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशिएशन कहाँ से होगा, दिस इज बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये कहाँ से होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो सिक होगा, पेशेंट होगा, तो वो ये जाएगा डॉक्टर के पास, ठीक है ना। मतलब ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो सिक पर्सन के लिए है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्या है बेटा, वो हेल्दी पर्सन के लिए है। अप्लाइड इन ग्रुप्स, अप्लाइड इन इंडिविजुअल्स। ये लेस एक्यूरेट है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मोर एक्यूरेट है। उसके बाद कंसेप्ट है लीड टाइम का। हम जो है ना स्क्रीनिंग में पॉसिबल लीड टाइम लेते हैं, ठीक है ना। जो टाइम लेग होता है, दिस इज एज पर यूजुअल टाइम ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ द डिजीज, दिस इज कॉल्ड द टाइम लेग। टाइम इसमें, लेकिन स्क्रीनिंग में ऑल ऑफ सडन उसको पता ही नहीं है, उसकी डायग्नोसिस हो जाएगी, द इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो जाएगी, उसके नेचुरल हिस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा, पैथोजेनिक फेज को उसको डिस्टर्ब करेगा। दिस इज द टाइम लीड टाइम गेन बाय द स्क्रीनिंग। दिस इज एम्स क्या है, पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग टू सॉर्ट आउट। क्या है कि सॉर्ट आउट क्या है कि अपेरेंटली हेल्दी पर्सन से मतलब हम डिजीज को बाहर निकाल के आए, जैसे कम्युनिटी में हिडन मास है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स से, दिस इज स्क्रीनिंग ऑलरेडी आई डिस्कस। केस फाइंडिंग, किसी और चीज के लिए हॉस्पिटल जाता है लेकिन उसको मतलब ये और बीमारी मतलब हो जाती है डिटेक्ट, और मतलब तो केस फाइंडिंग हो गया भाई, ठीक है ना। वो दूसरे पर्पस के लिए जाता है लेकिन उसके साथ इसको कोविड भी पॉजिटिव आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द केस फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भाई कंफर्मेटिव टेस्ट है भाई, इसको तकलीफ है या नहीं है, मतलब उस हवाले से अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से मतलब कंफर्म टेस्ट जो होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो भाई यूजेस ऑफ द स्क्रीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अर्ली केस डिटेक्शन है, कंट्रोल ऑफ डिजीज है, रिसर्च पर्पज है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, अवेयरनेस के हवाले से रिसर्च पर्पज है, ये सारी मतलब है obtaining a new knowledge, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, एजुकेशनल फॉर एजुकेटिंग द हेल्थ प्रोफेशनल्स के नए नए मकाले आ जाते हैं, नए नए मतलब उसमें रिसर्च पेपर में नई नई बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद 3 टाइप्स हैं स्क्रीनिंग के, एक मॉस स्क्रीनिंग है, दूसरा हाई रिस्क का सेलेक्टेड स्क्रीनिंग है, तीसरा मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग है। मॉस स्क्रीनिंग भाई ऑल ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन, हाई रिस्क स्क्रीनिंग हम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग में इसमें क्या है 3-4 टेस्ट मिला के एक ही टाइम पर हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, फेजिक स्क्रीनिंग। This is about the screening. This is the first topic of the screening. Then in coming week, inshallah, we will discuss about the second topic of the screening and what are the criteria of the screening, which diseases to be screened, उसके eligibility criteria disease की क्या है। Any question बेटा? Any question? Hello? Sir, I have the question. Sir, I have जी the question बेटा, about जी the जी। screening. Sir, if हाँ we हाँ have a lot of tests for any patient, like pregnant women, if any she have the HIV as well and hepatitis B virus as well, then we can हाँ collect the more than one test. Then it is the हाँ, what type of screening? मल्टीफेजिक हो गया ना बेटा स्क्रीनिंग, मोर देन So, वन sir, टेस्ट how to मल्टीफेजिक। multi-test? हाँ मल्टीपेथिक स्क्रीनिंग हो गई भाई, इसको एक प्रेगनेंसी के हवाले से मतलब आई है, उसको हेपेटाइटिस बी भी है, HIV एड्स भी हो गई, उसको हम देखेंगे ना तो सारी मतलब पता हमें पड़ जाएगा। तो फिर मल्टीपेथिक स्क्रीनिंग, और ये एक सेलेक्टिव स्क्रीनिंग भी हो जाएगी अपने हवाले से, ठीक है ना। So, प्रेगनेंट sir, वुमेन की स्क्रीनिंग करते हैं। we take the test more than one test from one patient. It is not a multiphasic. Then what भाई type of test, these or are we the, can say listen screening? listen listen my listen be listen very good, listen, there are the 3 types of the screening बेटा।
मास स्क्रीनिंग, होल द मास वाइडली, ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क स्क्रीनिंग और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है ना, ये दो हैं। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग है। जो आपका जो क्वेश्चन आता है बेटा वो हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग में भी आता है और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग में भी आता है। मास स्क्रीनिंग थ्रू आउट द मास, हाई रिस्क अबो 40 इयर्स के जो एज के बंदे हैं हम उसको ब्लड प्रेशर देखेंगे, उसका शुगर देखेंगे, मींस दिस इज कॉल्ड, हमने सिलेक्शन किया भाई इंक्लूडिंग क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग की, अबो 40, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट नहीं है भाई, हम उनका ब्लड प्रेशर देखेंगे, शुगर देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। अभी हम क्या है कि किसी एक चीज की स्क्रीनिंग करते हैं या हम मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग करते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर, दिस इज डिपेंड अपॉन द एपिडेमियोलॉजिस्ट। भाई उसके पास अगर यूरिन टीआर का भी है, सैंपल लेने का भी है, और हेमेटोलॉजी का भी है, ब्लड प्रेशर लेने का भी, मतलब ब्लड प्रेशर भी लेता है, और पोर्टेबल एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे भी लेता है, तो उसको हम मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग करेंगे। This is some Sir, but differentiation. I've studied in the park about the multi-purpose screening as well. There are the 4 types of screening. Multi-purpose screening. हाँ, this is a multi-purpose, this is a multi-phagic हो गया ना बेटा, multi-purpose है ना, this is the same thing ना। And Have you got that? sir, in what type of the prevention we can do screening? In what type of prevention? Primary, secondary, or tertiary? And why? What do you mean by primary prevention, beta? No, so we can do screening at what type of the prevention? At what level of the prevention? Yes, we are discussing it here. What do you mean by primary prevention? The primary prevention is taken before the start of the disease, means in healthy persons. And this is a screening is a secondary prevention because there is the entry of the organisms. There is a discussion of the agent, host, and environment. When there is the entry of the organisms into the body of the host, this is called the pathogenic phase. In primary prevention, we are performing when there is the agent, host, and environment, they are balancing to each other. Means there is no entry of the organism into the body of the host. No disease process is to be started. This is called the primary prevention. When there is the entry of the organism into the body of the host, we are performing the secondary prevention. Clear or not, my son? Hello? No, sir. No, sir. Then screening. Listen, Primary or secondary? Screening is the secondary prevention. ठीक है ना बेटा? प्राइमरी प्रिवेंशन ये है बेटा कि जब जिस्म में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज मतलब क्या है कि पर्सन जो नॉर्मल है, आप हेलमेट क्यों लगाते हैं सर के ऊपर बेटा जब बाइक आप जो ना मोटरसाइकिल चलाते हैं, या सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, मींस वी आर हेल्दी, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है बेटा, जब कोई मतलब चीज वगैरह जब ये ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज की पैथोजेनिक एजेंट की एंट्री हो जाए हमारी बॉडी में, हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। भाई हम जाते हैं हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए, दो वी आर हेल्दी, लेकिन एंट्री तो ऑर्गेनिज्म की हेपेटाइटिस बी की या सी की हो गई है ना हमारे जिस्म में। सेकेंडरी मतलब क्या है, प्री पैथोजेनिक फेज को हम छोड़ के पैथोजेनिक फेज में आ गए हैं, ठीक है ना, पैथोजेनिक फेज में आ गए हैं, इसमें हमारी क्या होगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी। Have you got my point? Beta? Yes, sir. And my last question from you is that you have said about case finding. Sir, case finding, it means there is no any diagnostic test for any disease in the population. देखें ना, केस फाइंडिंग कोई आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में किसी और चीज के हवाले से, ठीक है ना, किसी और चीज के हवाले से आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो इट इज यूज्ड टू क्लिनिकल और लेबोरेटरिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द डिजीज इन इंडिविजुअल सीकिंग अ हेल्थ केयर फॉर अदर रीजन। आप किसी अदर रीजन के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल में, फिर आपको मतलब कोई डिजीज आपको मिल जाती है कोई और, दिस इज कॉल्ड एज अ केस फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एट हियर। मुझे पता ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, लिसन मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ,
मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ डॉक्टर अल्ताफ के पास भाई अपनी जो है ना शुगर के लिए, ठीक है ना, उसने तो भाई एक और टेस्ट लिख दी भाई, आपने आपकी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये केस फाइंडिंग में भाई कोलेस्ट्रॉल भी है या कोई मतलब कोई को कह रहा है मुझे भाई आपको कोविड की भी टेस्ट कराएं, कोविड पॉजिटिव अल्लाह खैर करे, किसी को आ जाता है, लेकिन वो पर्पस दूसरे के लिए जा रहा है, लेकिन उसमें वो डिजीज मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड केस फाइंडिंग। दीज आर टॉपिक दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स, ये एक एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स है कि स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है। जब हम कंफर्म हो जाते हैं तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उसको, और जब हम नेचुरली हेल्दी हो मतलब खुद दिखाते हैं कि हम हेल्दी हैं तो उसमें सर्च हो जाती है डिजीज की, उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। और जो तीसरा मतलब है केस फाइंडिंग है, कोई दूसरे चीज के लिए हम जाते हैं लेकिन हमें जो है ना वो डिजीज मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड एज केस फाइंडिंग। दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स माय सन, ठीक है ना बाबा, ये टर्म्स हैं, हाँ ना। So these are the, I think this is I think a very clear presentation of me before you. So this is the take home message is that the screening may be defined as a search of disease in apparently healthy population. ठीक है ना, इसमें secondary prevention है। Have you got my points? Hello? Yes, sir. Any other question from other students? Hello, please. Hello? हाँ बेटा, No, sir. Mr. Arun? Thank you, sir. Mr. Arindko, what is the definition of screening? It's the basic purpose is to the evaluate the disease which is not recognized in the population. Means search of unrecognized disease. ठीक है Yes, ना? sir. What Unrecognized is the diseases in what is population. the importance of the iceberg scenario of disease? It is very important. We will find the in the unrecognized disease in the population at the tip, or we can say into end. देखिए ना, एक मसला है, ठीक है ना, एक मसला है हमें कम्युनिटी में डिजीज, एक्टिव डिजीज को मतलब कैसे हम डायग्नोसिस करें, उसके Yes, साइन sir. और सिम्टम्स पैदा ही नहीं हुए अभी तक बंदों में, लेकिन पैथोजेनिक फेज उनकी बॉडी में पैदा हो गया है, ठीक है ना, पैथोजेनिक फेज उनकी बॉडी में पैदा हो गया है, सब पोर्शन ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजीज इज हिडन इन द कम्युनिटी, Yes, ठीक है ना, sir. only tip is visible। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसबर्ग सिनेरियो ऑफ डिजीज। उसका हल करने के लिए, उस डिजीज को हाल्ट करने के लिए, उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। स्क्रीनिंग करके जो भी हिडन जो मास एक डिजीज का वो बाहर निकाल के हम ले आते हैं, ठीक है ना, जैसे डिजीज की ट्रांसमिशन इंटरप्ट हो जाए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ये सारा स्क्रीनिंग पढ़ें बेटा, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है ना हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ द स्क्रीनिंग क्या होनी चाहिए, टेस्ट कौन सी करते हैं, डिजीज की एलिजिबिलिटी क्या है, इस हवाले से उसके 2x2 टेबल पर हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल में इंशाल्लाह इन द सेकंड लेक्चर। ठीक है बेटा? हेलो? Okay, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।